ओके, फिर मैं करती हूँ। Dear shareholder, good afternoon and very warm welcome to this 26th annual general meeting of the Insecticides India Limited. This AGM is held through video conferencing mode only. This video conferencing facility is provided by CDSL and in compliance with the latest circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI, which permit the holding of AGM through video conferencing. The deemed venue of this meeting shall be the registered office of the company, located at 401-402 Lusa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi. All shareholders are requested to join the meeting using laptop or tab for an smooth experience. Members are urged to ensure that their microphone and cameras are enabled and to use a stable and high-speed internet connection to avoid connectivity issue during the meeting. For a smooth conduct of the meeting, shareholders will be on mute mode by default. Shareholders who have pre-registered themselves as a speaker will be unmuted and allowed to speak during the question answer session. Please note that proceeding of this meeting will be recorded and available at the website of the company. I would like you to go through certain details in regard to participation in this meeting. The company has taken all feasible steps to ensure the presence of the shareholders in this meeting through video conferencing. The presence of the shareholders on first come, first served basis. The members attending this meeting through VC will be counted for the purpose of ascertaining the quorum according to the Companies Act. The instructions for joining the meeting has been provided in the notice calling this meeting, which have been available on the website of the company, stock exchanges, and with depositories. During the meeting, any member facing difficulties in connection or have any query or issue relating attending this AGM may refer frequently asked question at evotingindia.com or contact CDSL on the phone number provided on the notice calling this meeting. This is to inform you all that Mr. Harichand Agrawal, the chairman of the company, due to health issues, would not able to join this 26th annual general meeting, and with the permission of members, Mr. S. Jayaraman, lead independent director and chairman of nomination, remuneration and ethics committee of the company, shall be the chairman of this meeting. Mr. Jayaraman is attending this meeting from his residence at Mumbai. Requisite quorum being present, I request chairman of this meeting, Mr. Jayaraman, to please call the meeting to order. I hand over the proceeding to Mr. Jayaraman. Sir. A very good afternoon, dear shareholders. I extend a warm welcome to each and every one of you to the 26th annual general meeting of the company. I appreciate your presence here today, and as the requisite quorum is being present, I call the meeting to order. May I now invite our company secretary, Mr. Sandeep, to take charge of the proceedings. Thank you, Chairman, sir. Now I would like to call upon the directors to introduce themselves and confirm their participation in this annual general meeting. Let me start with whole-time directors, started from Managing Director, Mr. Rajesh Kumar Agrawal. Good afternoon, members. I am Rajesh Kumar Agarwal, Managing Director of the company, attending the company from my office. Thank you very much, sir. Ms. Nikunj Agrawal. Good afternoon, members. Nikunj Agarwal, whole-time director of the company, attending meeting from Kolkata. Thank you, ma'am. Mr. Anil Kumar Goyal.
Mr. Anil Kumar Goyal. Sir, your voice is not coming. It might be on mute. You may unmute yourself. We'll get back to you. Moving forward, Mr. Brijesh Kumar Gupta. Good afternoon, members. I am Brijesh Kumar Gupta, Independent Director and Chairman of Stakeholders Relationship Committee of the company, attending this meeting from my residence in Delhi. Thank you very much, sir. Mr. Naveen Shah. Good afternoon, sir. I am Naveen Shah, attending the meeting from my residence, Pune. Thank you, sir. Mrs. Praveen Gupta. Good afternoon, members. I am Praveen Gupta, Independent Director and Chairman of Audit Committee. I am attending from Delhi, my residence. Thank you, ma'am. Thank you. Mr. Anil Kumar Bhatia. Mr. Anil Kumar Bhatia. Sir, Anil Kumar Bhatia, sir, got disconnected. So you may please continue the proceedings. Yes, please. Thank you. Thank you, sir. This is to further inform you that we have management team and auditors with us, namely Mr. Sandeep Agarwal, Chief Financial Officer of the company, Mr. Devesh Parekh, Statutory Auditor from Devesh Parekh and Company, Mr. Vijay Kumar, Statutory Auditor from SS Kothari Mehta and Company, Mr. Ashwani Kumar Agarwal, Cost Auditor from Agarwal Ashwani K and Associate, Mr. Akash Gupta, Secretarial Auditor and Scrutinizer of this AGM, Ms. Aditi Gupta, Internal Auditor. Now, I would like to request the Chairman to please address the shareholder. Over to Chairman. Thank you, Sandeep. Once again, a very warm welcome to all the shareholders in this 26th annual general meeting of the company. It's a matter of pride for me to chair this annual general meeting. In the financial year 2023, our company faced challenging times due to several factors, and with hard work and dedication of the IIL team, we had overcome to make it an exceptional year in both positive and negative way. On one hand, it was a year with strong growth in revenue and achieved our strategic goals. On the other hand, it was a year where we faced a difficult situation due to liquidation of high-cost inventory, which resulted in a decline in profitability. Our company wishes every farmer to grow and help the farmer community is our clear purpose and inherent strength. The company works towards shaping the future in a sustainable way. During financial year 23, we focused on our working strategy towards the development of half-patented products and making them available to the farmers at a reasonable price. We focus on innovation with existing portfolio, backward integration, and new generation formulations. We are glad to announce that despite the industry's challenges, we have successfully met our strategic goals. This means we are able to deliver value to both our customers and shareholders. And during this year, we successfully completed a significant expansion program at our Chopbanki, Rajasthan facility
enhancing our technical capabilities. The financial performance of the company were satisfactory in nature, wherein the revenue stood at rupees 1,800 crores, profit before tax rupees 84 crores, and net profit rupees 63 crores. The company deeply acknowledges the importance of environmental, social, and governance policy, in short form ESG, and implemented the various aspects in driving the sustainable development. Our ESG policy is having main objectives as minimizing carbon emissions, preserving precious natural resources, increasing the proportion of renewable energy sources, and fostering responsible conduct of business. Looking ahead, our company's commitment lies in delivering sustainable advantages to all our stakeholders and contributing positively to the environment for a cleaner and healthier planet. With this, on behalf of Board of Directors and every member of IIL family, we thank the shareholders for the trust they have reposed on us and the board. We are truly grateful for your sustained cooperation throughout our journey. Thank you to all the shareholders. Now I request our Company Secretary, Mr. Sandeep, to proceed with the regulatory announcements and proceedings of this annual general meeting. Thank you, Jayaraman sir. Good afternoon once again, dear shareholders. I have checked and attendance of Mr. Anil Kumar Goyal and Anil Kumar Bhatia is taken off. Notice convening this 26th annual general meeting is forming part of the annual report for the financial year ended March 31st, 2023, containing audited standalone and consolidated financial statement along with board and auditors report for the financial year ended March 31st, 2023, which has been already circulated to the members electronically, whose email addresses are registered with depository and with the company. Annual report 2023 is also available on the website of the company and with the stock exchanges. With your consent, we take the notice of 26th annual general meeting dated August 10, 2023 as read. With respect to financials of March 31st, 2023, the joint statutory auditor, Messrs. S.S. Kothari Mehta and Company, Devesh Parekh and Company, and secretarial auditor Akash Gupta and Associate have given their unqualified opinion for the financial year ended March 31st, 2023. There are no qualification, reservation, or adverse remark or disclaimer in their respective reports of the financial statement and corporate governance. As directed by Chair, we now call upon the agenda items of the notice, which contains 4 items, out of which 3 are ordinary businesses and 1 is special business. Item number 1 of the notice is adoption of audited standalone and consolidated financial statement for the financial year ended March 31st, 2023 and report of the board and auditors thereon. Item number 2, to confirm the payment of interim dividend of rupees 3 per equity share paid during the year as the final dividend for the financial year ended March 31st, 2023. Reappointment of Shri Anil Kumar Goyal, who retires by rotation and being eligible seeks reappointment. Item number 4, ratification of remuneration of cost auditor for the financial year 2023-24. Since this 26th annual general meeting is held through video conferencing according to the SEBI rules and regulations, and all the resolutions are put
vote through e-voting, and therefore practice of proposing and seconding the resolution would not be required and would not be followed. In compliance with the provisions of Companies Act 2013 and SEBI listing regulations, the company has provided the remote e-voting facility to the shareholders of the company to cast their vote electronically through remote e-voting provided by the CDSL. The simple process of remote e-voting is being explained in the notice of the 26th AGM. Remote e-voting was available from September 19, 2023 at 9 a.m. till September 22nd, 2023 at 5 p.m. The members who have not availed the remote e-voting facility are encouraged to cast their vote through e-voting facility provided during this AGM. And the facility will be available for further 30 minutes after conclusion of this AGM. Thereafter, the voting will be closed as per rules and regulations. I would also like to inform you that the Board of Directors has appointed Mr. Akash Gupta, practicing company secretary, as a scrutinizer to scrutinize in the remote e-voting process and e-voting at this meeting in a fair and transparent manner. The Register of Directors and KMP and their shareholding and Register of Contract or Arrangement or registered and information related to the notice is available during the meeting and will remain accessible to the members for inspection electronically if they desire so. I would now request Mr. Rajesh Kumar Agarwal, Managing Director of the company, to enlighten the shareholders about the company's approach towards the future endeavor and the achievement of financial year 2023. Over to Managing Director. Thank you, Sandeep. Good afternoon, members. I am honored to present before you today on the 26th Annual General Meeting of Insecticides India Limited. The momentous occasion provides us with the unique opportunity to reflect on our company's performance in FY23 and unveil the ambitious outlook for the future. Before we dive into the specifics of the company achievements and our strategic vision, I want to take a moment to extend my heartiest gratitude to our stakeholders, shareholders, customers, employees, and all the dedicated stakeholders who have played an integral role in propelling us to new heights. Your unwavering support and trust has been the bedrock of our success, and I thank you for your continued partnership as we embark to this journey in collaboration with shared success. FY23 was a year marked by phenomenal growth and groundbreaking innovation. So first I would talk about the industry. So I believe that there is a big opportunity in front of the Indian industry because the international scenario which has happened post-COVID and after the Russia-Ukraine war has twisted the things in favor of India as a manufacturing hub, because we have seen a huge export opportunity. Why? Because China plus one and Europe plus one policy of the world, because people are looking as the alternate source from where they can source their material. It has been very, very successful in giving India a big stand in the international market. And India today, as per the WTO reports, ranks second in the export of agrochemical with 5.5 billion market share, and it is expected to touch 7 to 8% by 2028. The future look very bright, particularly in CRAM segment also. To give the overview, in India we see the increasing population. We are number one in terms of population, but that comes with a big opportunity. The young population, who is the working population, we are about 70 crores in our company in the working age group. And the good part is by 2050 will be 90 crores, which means that India is going to remain young for years. So the demand is going to be huge continuously for years together. So there is going to be big demand for food. There will be good growth for the company because the working class is going to bring big prosperity for the country. Today, India is the second largest producer of agriculture in the world,
and consumes just the agrochemical of $4 billion. So Indian consumption is $4 billion, whereas the total world consumes about $74 billion of pesticide, which means we are feeding about 17% population of the world with just 5% of agrochemicals. If we compare ourselves with the leading countries of the world like USA, Brazil, Japan, China, Europe, their consumption per hectare is much higher than the consumption what we are doing in India, because the AI we use in India is about 0.5, about 500 grams, whereas the world average stands at about 1.5 kg grams or 1.5 kg per hectare, which means we are 1/3 of the world's average. And if we look at these countries, their consumption stands from 1 kg to 7-8 kgs per hectare, which means they are consuming very high quantity of agrochemicals. I can say that there is a big opportunity. At the same time, I would also like to highlight what people think generally about agrochemicals, that the biologicals are coming. There is organic cultivation. Is it a threat to agrochemicals? So here I would like to tell you, friends, that it is all the technologies have to coexist. Biologicals are not a challenge to chemicals. Yes, we need to do the judicious use of chemicals. We need to bring new chemistries, greener chemistries, and that comes as the challenge. But the bigger challenge is perception of the agrochemicals. Today, agrochemicals are the real saviors of life of humans and animals. So, excess of anything is bad. I can say a small example, like a daily product like common salt. Can you consume an entire box of common salt? Can you consume 1 kg of sugar at the same time? Will it not be poisonous? You can talk about medicines. Doctor gives you one medicine in the morning, one in the evening. Can you consume the entire strip and it will help you? No, it is not going to help you. I would also here like to discuss about the monsoons, because this is the El Nino year and this is the big news that El Nino has brought in the warm months and it has impacted the agriculture of the entire world. That's not, I would say it's not wrong, because इंद्र देवता की कृपा पर किसान चलता है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. लेकिन अभी धीरे धीरे जिस तरीके से पानी अरेंज हो रहा है या किसान अपने लिए पानी की ऑर्गेनाइजेशन कर पा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है. लेकिन फिर भी इट्स ट्रू that it has been the entire world has suffered due to El Nino. There has been high temperatures, low rains, and Asia particularly was relatively better to other geographies, I can say to the Western world, like the countries of America, Europe, which suffered more by drought in comparison to Asia. And due to Western disturbances, our country received good rains or reasonable rains, because in July we see a good season. August though was dry, but September again it is raining, though it is unrequired at this time, because कई बार मैं बोलता हूँ कि भूख लगी है, लंच खाना है, लेकिन लंच नहीं मिला. डिनर में अगर लंच और डिनर दोनों मिल जाए तो आप दोनों खा नहीं सकते. तो अभी इसी टाइप की सिचुएशन है कि अगस्त में इट वाज बैडली रिक्वायर्ड. अभी कुछ जगह चाहिए, कुछ जगह नहीं चाहिए. अनफोर्सीन रेन्स हैं, कुछ जगह फायदा हो रहा है, कुछ जगह उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए. लेकिन फिर भी आज रेन पर डिपेंडेंस हाई है. लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के लिए एक अच्छा सीजन रहा है, अच्छा डिमांड सिनेरियो हमने देखा है, और बहुत बढ़िया एक सिचुएशन रही है इंडिया के लिए. यहाँ पर अब मैं फिर से दुनिया की बात करता हूँ, तो हमने देखा कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड द प्राइसेस ऑफ ऑल केमिकल्स हैव सर्ज्ड, बिकॉज दुनिया भर में शॉर्टेज हुई. शॉर्टेज होने की वजह से दाम बढ़ा, और वो इतना दाम बढ़ा कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे आ गया, या ऑल टाइम हाई लेवल पे आ गया. अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा. लेकिन पिछले साल, एक साल में हमने फिर से बदलाव देखा, क्योंकि जब खरीफ सीजन बैठ गया, लगभग यही टाइम था, उसके बाद दाम गिरने शुरू हुए और फिर से वो एक लोएस्ट प्राइसेस की तरफ आए. तो दो चीजें जिम्मेदार थी इसमें. नंबर वन वाज द ड्राउट और पुअर डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट्स. दूसरा, देयर वाज द करेंसी क्राइसिस इन मेनी कंट्रीज, बिकॉज अगर डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करता हूं तो उनके पास या तो बैंक में पैसा नहीं है, और बैंक में पैसा है जो प्राइस है वो केमिकल का बहुत नीचे आया, और चाइना ने कंटिन्यूअसली अपनी प्रोडक्शन को ऑन रखा, और उसने बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे, जो जेनरिक्स हैं, बहुत एग्रेसिव प्राइसेस पर दुनिया भर में डंप किए, जिससे ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बड़ा इंपैक्ट आया. और साथ में अगर मैं बोलूं कि सेंटीमेंट क्रैश हुआ,
तो गलत नहीं है, बहुत बुरी तरीके से सेंटीमेंट क्रैश हुआ। लेकिन अगर हम देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो मैं इसको कह सकता हूं कि दिस वाज द अपॉर्चुनिटी टू बाय चीप, रीवर्क योर स्ट्रेटेजी। और एक जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पैसा लगा रही थी, क्योंकि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो मोदी जी ने जब मेक इन इंडिया का आह्वान किया तो सब लोगों ने ये सोचना शुरू किया, व्हाई नॉट मेक इन इंडिया इटसेल्फ, व्हाई नॉट वी बैकवर्ड इंटीग्रेट, व्हाई नॉट वी इन्वेस्ट मोर मनी। तो मैं कह सकता हूं कि 30-40 जितनी भी कंपनी है एग्रोकेमिकल की, जो लीडिंग कंपनीज हैं, उन सब ने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पैसा डालना शुरू किया। और मैं कह सकता हूं कि इस सिनेरियो में देयर वाज अनदर टाइप ऑफ कंपटीशन जो सामने आया। अब मैं बात करूंगा जो साल 2023 निकला है, उसमें आईएल की क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसा रहा, हाउ डू वी फेस इट एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि दिस सिनेरियो फोर्स्ड अस टू रीथिंक, रीप्लान एंड रीवर्क आवर स्ट्रैटेजी फॉर फ्यूचर ग्रोथ। क्योंकि ऐसा समय था जब बहुत कॉम्पिटिटिव दामों पर ये जेनरिक्स प्रोडक्ट को हमने बिकते हुए देखा, और उस बात को देखते हुए हमने अपनी स्ट्रैटेजी को रीफ्रेम किया और हमने प्लान किया कि जो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं और जहां मार्जिन बहुत कम है, इसका मतलब कि वो मार्केट फ्लक्चुएशंस के शिकार होंगे। क्योंकि आज एक फ्लक्चुएशन आया जब दाम गिरे, कल फिर फ्लक्चुएशन आएगा, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे, तो शायद उतना ज्यादा दाम ले पाना मार्केट से मुश्किल होगा। तो क्यों ना हम जो ऐसे टेक्निकल्स हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे बिकते हैं, जहां पर मार्जिन बहुत कम है, उनको ड्रॉप कर दें। तो इस बात को सोचते हुए हमने उन प्रोडक्ट्स को ड्रॉप करने की स्ट्रेटेजी बना दी। और सेकेंड स्ट्रेटेजी बना, इनको क्यों ना लेके आएं और इनकी क्वांटिटीज को क्यों ना बढ़ाएं। तो जो भी एक्सपेंशन हम चौपानकी और दहेज दोनों ही प्लांट्स में अपने टेक्निकल का कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने स्ट्रेटेजी को बदलाव कर दिया पूरी, और हमने टारगेट बनाया कि नए प्रोडक्ट्स को हम लेकर आएंगे। इसके अंदर सबसे पहले R&D और रेगुलेटरी टीम को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य है कि हमने नए टेक्निकल्स बनाने, क्योंकि इस साल भी जो अभी 2-3 इंट्रोडक्शंस हुई हैं और आगे भी 3-4 इंट्रोडक्शंस होने वाली हैं, वो ज्यादातर इंट्रोडक्शन अपना टेक्निकल बनाकर ही हो रही हैं। यानी हम इंडिया में पहली बार वो टेक्निकल्स बनाएंगे, उन टेक्निकल से फॉर्मुलेशन बनाएंगे और उनको मार्केट में लेकर आएंगे। बहुत सारी सक्सेस मिली, खासतौर से मैं बात करना चाहूंगा टॉरी की, मिशन की, जहां पर हमने ऐसा ही किया, इनको पहली बार इंडिया में बनाया और बनाकर इनके फॉर्मुलेशंस को मार्केट में डाला, और बहुत अच्छा नाम आज आपकी कंपनी ने कमाया इन दोनों हर्बिसाइड में और इंसेक्टिसाइड में, और बहुत अच्छी सक्सेस ना ही सिर्फ ब्रांड सेल्स में बल्कि इंस्टीट्यूशनल सेल्स में भी मिली है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग टीम ने भी पूरा एफर्ट किया, क्योंकि जितना जरूरी है एक मजबूत पाइपलाइन को क्रिएट करना, उतना ही जरूरी है कि हमें एक कस्टमर बेस क्रिएट करना है, एक नेटवर्क क्रिएट करना है जो इसको मार्केट तक लेकर जा सके और प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचा सके। तो इस साल बहुत सक्सेसफुल अच्छे लॉन्चेस किए हैं, और खास तौर पे मैं कई बार बोलता हूं कि पिछले 2-3 साल में जो हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगा शिनवा, हाचीमन, इजुकी, टॉरी, मिशन, डोमिनेंट, ग्रीन लेबल, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करके इन सब प्रोडक्ट्स को अपना सुपरस्टार बनाया, और हमने कोशिश की कि ये 6-7 प्रोडक्ट से हम लगभग 500-600 करोड़ की ग्रॉस सेल्स जनरेट कर आउट ऑफ दिस 7 प्रोडक्ट्स। तो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से हम इनको फोकस महारत्ना बनाकर आगे चले, और हमने कोशिश किया कि हमारे ग्रोथ के अंदर ये हमारा सहयोग करें। और मुझे खुशी है बताते हुए सब मेंबर्स को कि बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छी कामयाबी इनमें से लगभग सभी प्रोडक्ट्स के साथ मिली है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो बचा हुआ सीजन है, खरीफ सीजन और रबी सीजन, इनमें भी हम इनको अच्छा बेचेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्ट्रेटेजिकली हमने इन सभी प्रोडक्ट्स के नए नए जो वर्जन्स हैं उनको बनाने की भी कोशिश की, और बहुत अच्छा सक्सेस मिला। जैसे ग्रीन लेबल को एक्सटेंड करके हमने इस साल ग्रीन एक्सपर्ट लॉन्च किया, अच्छी कामयाबी मिली। आप सबको मालूम है कि ग्लाइफोसेट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बवाल मचा, इंडिया के अंदर भी इश्यूज थे। हालांकि हमारी एसोसिएशन CCFI ने और बाकी एसोसिएशंस ने इसके लिए बहुत सारे प्रमाण दिए, और प्रमाण देने के बाद इसको कंटिन्यू कराया गया इंडिया में। लेकिन फिर भी हमने हाईमैक्स और बाउंसर, दो नए प्रोडक्ट्स इस रेंज में भी मार्केट के अंदर डाले हैं। तो कुल मिला के मैं बताना चाहता हूँ कि हम किसान को पूरा सॉल्यूशन देने में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि कस्टमर हम कभी प्रोडक्ट नहीं चाहता, वो सॉल्यूशन चाहता है। तो नए नए प्रोडक्ट अपने R&D के माध्यम से लाके और उनको मार्केट में एस्टेब्लिश करके, किसानों को ट्रेन करके, हम लोग पूरा सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बहुत अच्छी कामयाबी हमें इसके अंदर मिल रही है। यहाँ पर एक बात और करना चाहूँगा कि आज का जो ज़माना है वो AI का ज़माना है।
आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ऐसे में ना ही मुझे टेक्नोलॉजी अपने प्लांट पर चाहिए बल्कि सिस्टम्स के अंदर भी टेक्नोलॉजी का योगदान चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि चाहे वो ERP हो, चाहे वो आपके डैशबोर्ड्स हों, चाहे CRM एक्टिविटी हो, आज हमारी कोशिश है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी करनी है, क्योंकि आज कंपनी के अगर 7-8 हज़ार एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो करीबन 60-70 हज़ार एक्टिव रिटेलर्स भी हैं। तो उन रिटेलर्स को मैं ERP से कनेक्ट नहीं कर पाता, हैं जो परमानेंट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से लगातार, जो CAs हैं या क्रॉप एडवाइजर्स हैं जो ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी में 2-3 साल से काम कर रहे हैं, और 600-700 लोग हम लोग सीजन में भी अडॉप्ट करते हैं, तो लगभग 2000 लोगों की सेना है जो किसानों के बीच जा रही है, किसानों को ट्रेन कर रही है, उनको अपने प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करा रही है और बहुत अच्छी कामयाबी पा रही है। यहाँ पर मैं जापान के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी में जापान भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। खासतौर से हमारा कोलैबोरेशन निसान के साथ हमने 2013 में अपना कोलैबोरेशन किया था। आप सब जानते हैं हकामा और पल्सर बहुत अच्छे प्रोडक्ट चल रहे थे, और उसके बाद जैसे जैसे मौका मिलता गया हम नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते गए। तो मैं बताना चाहूँगा कि हकामा को एक्सटेंड करके हमने हाचीमान बनाया, जो कि 2 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है, एक टेक्निकल हम बनाते हैं, एक जापान से आता है, दोनों को मिला के हाचीमान बनाया। बहुत बढ़िया BD साइड है और बहुत बढ़िया सक्सेस मिली, अब तक का नंबर 1 प्रोडक्ट है हमारी रेंज में। इसी तरीके से पल्सर को एक्सटेंड करके हमने एक और जापानी कंपनी के साथ मिलकर उसका एक और टेक्निकल लाए और इजुकी बनाया। अच्छी कामयाबी मिल रही है, अभी डेवलपिंग फेज में है। इस साल एक रीजनेबल शेयर मिलेगा, लेकिन अगले साल मैं समझता हूँ कि मल्टीप्लाई होगा फिर से। कोनोची माइटी साइड है, अच्छा चल रहा है। शिनवा एक इंसेक्टिसाइड हमने निसान के साथ लॉन्च किया था, लास्ट ईयर ये हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट था, और इस साल भी हम इसकी सेल डबल करेंगे कम से कम, और ये नंबर 1 प्रोडक्ट रहेगा। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि निसान का जो मार्केट शेयर है हमारी सेल में आज के दिन लगभग 20% का है। तो ब्रांड सेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 20% इज कमिंग फ्रॉम निसान प्रोडक्ट्स। और साथ में मैं आज अनाउंस करना चाहूँगा कि कम से कम 2 नए प्रोडक्ट, एक राइस हर्बिसाइड और एक और इंसेक्टिसाइड हम निसान के साथ आगे भी लॉन्च करेंगे। इसी तरीके से मैं ओत्सुका की भी बात करना चाहूँगा, जिसके साथ मिलके हमने OIL कंपनी को एस्टेब्लिश किया, जो कि रिसर्च के अंदर ध्यान दे रही है। बहुत सारे पैटेंट्स इस कंपनी ने अप्लाई किए हैं, और बहुत ज़्यादा काम आजकल हमारा जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है उसको करने पे लगा हुआ है, और बहुत ही जल्दी ये प्रोडक्ट भी शायद मार्केट की शक्ल देखा 2025 या 26 तक हम इसको मार्केट के अंदर ला पाएंगे। तो ऐसी कोशिश जारी है। मैं कहना चाहूँगा कि IL की जो इमेज बनी है मार्केट में, इट इज एस्टेब्लिश एज अ कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग द पॉपुलर ब्रांड्स टू द कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और साथ साथ जो हमने बदलाव लाया पिछले 2-3 साल में, उसने जो इमेज दी है कि न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट द कंपनी इज गिविंग इन द रीच ऑफ द फार्मर, क्वालिटी, क्वांटिटी, रीच, ट्रेनिंग और वैल्यू फॉर मनी, ये हमारे गुण हैं जिसको मार्केट ने सराहा है और कंपनी के साथ चला है। यहाँ पर मैं साथ के साथ R&D और इनोवेशन की भी बात करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से इनोवेशन की है किसी भी कंपनी के लिए सक्सेस की, क्योंकि वो बिजनेस के लिए सस्टेनेबिलिटी लाती है। और अगर मैं बोलूं कि इंश्योरेंस इज लाइक R&D इज लाइक अ इंश्योरेंस कवर टू एनी बिजनेस, क्योंकि जो आप पैसा बिजनेस के एक्सपेंशन में लगा रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी अगर R&D आप कर रहे हैं तो वो आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर रखने के लिए आपको एस्टेब्लिश करेगा और मदद करेगा। तो कोई इसके अंदर दो राय नहीं है। दोस्तों, हम लोग 2 टाइप की R&D करते हैं, आप सब लोग जानते हैं, बायोलॉजिकल्स में और केमिकल में। बायोलॉजिकल अभी बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज में है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शामली के प्लांट से, बायोलॉजिकल प्लांट से हमने थोड़े से पैटेंट्स डाले अपने R&D सेंटर के साथ, कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए, मार्केट में डाले हैं। डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में इसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़े से चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब आप एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को मार्केट में डालते हो तो शेल्फ लाइफ, उसके अलावा जो इंडिया में टेम्परेचर वेरिएशंस है सर्दी और गर्मी के, उनका, और जो माइक्रोब्स हैं आपस में, उनको कोएग्जिस्ट करने के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इन चैलेंजेस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे नैनो फॉर्मुलेशंस भी डेवलप कर रहे हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हमने अपना सेकंड लेबोरेटरी चौपानकी के अंदर भी डेवलप कर दिया है बायोलॉजिकल्स का, और ये भी लेबोरेटरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुछ पैटेंट्स हमने यहाँ से भी फाइल किए हैं। लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा कि बायोलॉजिकल अभी इनिशियल स्टेजेस में है, और ज़्यादा डिटेल इसके बारे में आगे बात करूँगा। केमिकल्स की बात करूँगा। केमिकल्स के अंदर R&D हमने बहुत शुरुआत से चालू कर दी थी, और सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग का काम किया था, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इंडिया में मोनोपोली हैं,
लेकिन ऑफ पेटेंट हो चुके हैं, पब्लिक रिजीम में लाए जा सकते हैं, तो उनके हमने टेक्निकल बनाए और उनको मार्केट में लेके आया। बहुत अच्छे सक्सेस इन सभी ब्रांड से मिले। और अगर पिछले 7-8 साल के लॉन्चेस की मैं बात करता हूं तो ज्यादातर लॉन्चेस हमने खुद से टेक्निकल बना के उनको मार्केट में डाला और उसमें सक्सेस मिला। लेकिन इसकी स्पीड पिछले 1-2 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कोविड पीरियड के दौरान रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहे थे और उससे पहले पॉलिसी क्लियर नहीं हो रही थी। तो ये एक कोर्ट्स के अंदर और मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके ये हमें जीत हासिल मिली है कि आज के दिन हमें नए नए रजिस्ट्रेशंस मिल रहे हैं और प्रोडक्ट जैसे ही ऑफ पेटेंट हो रहे हैं उनकी जो ग्रांट है वो जल्दी जल्दी हमें हो रही है। और हम लोग की कोशिश है कि जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ पेटेंट हो जाता है उसको उसी साल में मार्केट के अंदर ले आए, बल्कि कोशिश तो ये है कि ऑफ पेटेंट होने के अगले दिन ही वो प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में होना चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन, पैटेंट थोड़ी कनेक्टिविटी ग्लिचेज आ गए थे, तो मैं बताना चाहूँगा R&D सेंटर की हम लोग बात कर रहे थे, तो फॉर्मुलेशन R&D सेंटर कंपनी का भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे इनोवेशंस हो रहे हैं और नए नए सॉल्यूशंस हम किसानों के बीच में पेश कर रहे हैं। क्योंकि किसान को इससे मल्टीपल फायदे हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उसको साइनर्जी मिल रही है कुछ प्रोडक्ट्स के मिक्सचर से, उसको नंबर ऑफ स्प्रेज कम हो जाते हैं, दवा कम लगानी पड़ती है, बेटर कंट्रोल मिलता है, सेविंग मिलती है, और ये साइनर्जी उसको फायदा दे रही है ओवरऑल, जिससे बहुत अच्छी कामयाबी कंपनी के इन प्रोडक्ट्स को मिलती है और इन प्रोडक्ट्स को IP प्रोटेक्शन भी मिलता है, तो उसका भी फायदा हो रहा है। उसके अलावा जो हमारे R&D सेंटर्स हैं ये हमें काम जो फायदा दे रहे हैं टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का, क्योंकि जब हम सिंथेसिस चालू करते हैं तो इसके अंदर रेगुलर बेटरमेंट करनी पड़ती है हमें कि किस तरीके से हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, किस तरीके से नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स जो हैंडल कर सकते हैं उनको कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर मैं कह सकता हूँ कि ये डिपार्टमेंट को मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिपार्टमेंट, सेविंग डिपार्टमेंट या बेटर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट कुछ भी कह सकता हूँ, तो इसका काम आ रहा है। और इसी के साथ साथ जो बेसिक डिस्कवरी हमने OIL के साथ शुरू किया था, ओत्सुका कंपनी के साथ, जापान के साथ, उसके अंदर भी अच्छी कामयाबी मिल रही है। अभी मैं बात करना चाहूँगा जो कंपनी की नई कंपनीज जो हमने फ्लोट की हैं। सबसे पहले IL बायोलॉजिकल्स। IL बायोलॉजिकल 100% इंसेक्टिसाइड इंडिया की सब्सिडरी है, जो कि जैसा इसका नाम है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर बूस्ट करने के लिए बनाई गई है। हमारा आइडिया है कि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो करेगा वो IL बायोलॉजिकल करेगा। और बायोलॉजिकल अभी नेसेंट स्टेज में जरूर है, लेकिन मेरा मानना है कि फ्यूचर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से सब लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ भाग रहे हैं या ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं, हालांकि इसके अंदर बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि खाली फुल्ली ऑर्गेनिक होना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा सब स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि जनरल इंटरेस्ट की बात है, कि अगर आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो एक तरीके से ये आयुर्वेदिक का काम करता है, आयुर्वेदिक का या होम्योपैथिक का। जिस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक चीज अपना लेते हैं, योगा कर लेते हैं, और जिससे हमें बीमारी कम आती है, उसी तरीके से जो बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं जनरली वो सॉइल हेल्थ का ज्यादा अच्छा काम करते हैं, प्लांट हेल्थ का ज्यादा अच्छा काम करते हैं, और कहीं कहीं पे कीटों को भी प्लांट से बचाते हैं, या कुछ फंगल या वायरल अटैक को भी प्लांट पे आने से बचाते हैं। लेकिन इनकी अभी डेवलपमेंट चल रही है। हालांकि यूरोप ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 2030 तक शायद 25 से 30% कंजम्पशन उन्हें बायोलॉजिकल्स का करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखा देखी पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रेंड आने वाला है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हम इस टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने 2 R&D सेंटर, जैसा मैंने पहले बताया था, इसमें एस्टेब्लिश कर लिए हैं, और मेरी कोशिश है कि IL बायोलॉजिकल्स का प्लांट भी हम बहुत जल्दी चालू कर दें और जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको IL बायोलॉजिकल में कन्वर्ट कर दें। इसके साथ साथ मैं IL ओवरसीज जो एक और कंपनी बनाई है, ये भी 100% सब्सिडी इंसेक्टिसाइड इंडिया की, जिसको दुबई में बनाया गया है। IL ओवरसीज DMCC इसका नाम है। आइडिया ये है कि अफ्रीका है और इन मार्केट्स के पास जाकर बैठा जाए तो बहुत अच्छे से बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए हमने इस ऑफिस की शुरुआत की है। बहुत ही जल्दी यहाँ से कारोबार शुरू हो जाएगा, जो हमारे एक्सपोर्ट के बिजनेस में एक्सपेंशन के अंदर मदद करेगा। इसके अलावा कंपनी ने इस साल एक और इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि बहरोड में है। बहरोड दिल्ली जयपुर हाईवे का मिडवे है। ऑलमोस्ट हाईवे पर ये 15 एकड़ की जगह है लगभग, जो एक एग्जिस्टिंग वेयर हाउस है, जो पुराना प्लांट हुआ करता था। हमने इसको खरीदा है, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इसके अंदर फॉर्मुलेशंस, टेक्निकल्स, उसके साथ साथ कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स, बायोलॉजिकल्स
और R&D सेंटर, सभी चीज़ों की स्थापना एक साथ की जाएगी। ये अभी सब कुछ प्लानिंग में है। प्लांट सेटअप का काम बहुत जोरों से 2024 में चालू हो जाएगा और 2025 में इस प्लांट को हम बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं सभी मेंबर्स को बताना चाहूँगा कि हमारे जो भी एफर्ट्स हैं, ये एफर्ट्स इस बात को ध्यान में रखते हुए हैं कि अगले ग्रो करती रहे। हमारी कोशिश है कि नए नए सॉल्यूशंस हम अपने R&D सेंटर के माध्यम से, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के माध्यम से हम किसानों के बीच में लाते रहें और बहुत अच्छी कामयाबी ना ही सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पाते रहें। अगर मैं कंक्लूसिव रिमार्क देना चाहूँगा, यहाँ मैं बात करूँगा कि IL continues to grow, testament of collective efforts of dedicated employees and the unwavering support of the stakeholders. इसके अलावा हमें कुछ क्वेश्चंस कुछ लोगों ने पूछे, मैंने काफ़ी कुछ तो अपने स्पीच में कवर कर दिए, लेकिन 2-3 जो रह गए उसके बारे में कहना चाहूँगा कि फिर से कि सबसे पहले मैंने ग्रोथ की बात की, तो हम 20% के रेट से अगले 4 से 5 साल में ग्रो करना चाहते हैं और उस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार कंपनी R&D के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मार्केट डेवलपमेंट के अंदर, डाटा के अंदर, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के अंदर, हर चीज़ में, हर डायरेक्शन के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिकॉज आइडिया ये है कि जो पूरी माला है मजबूत होनी चाहिए। 1-2 फूलों के मजबूत होने से काम नहीं चलेगा, पूरी की पूरी को लड़ी को मजबूत बनाना है और बहुत मजबूती के साथ टेक्नोलॉजी को लेकर मार्केट के अंदर जाना है। इसके अलावा एक्सपोर्ट फ्रंट पे बात की गई, तो मैं बोलना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट्स के अंदर मैं देख रहा हूँ। हालांकि जो मार्केट खराब था और जो कलेक्शंस नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ पुअर डॉलर अवेलेबिलिटी, हमने चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 150 करोड़ का हमने आंकड़ा अभी ऑल टाइम हाई लगभग टच किया है पास्ट में, तो एक बार फिर से हम उसको टच करेंगे और अगले साल से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद एक और थोड़ी दुखद खबर है जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारे दहेज प्लांट में एक छोटा सा फायर हुआ था। इस फायर में कैपिटल और गुड्स लॉस हुआ, लगभग 4 करोड़ के करीब का ये नुकसान हुआ है और कुछ दिन से प्रोडक्शन एक प्लांट की बंद है, जिस प्लांट के बाहर में या आउटर एरिया में ये फायर हुआ था, क्योंकि वो रिपेयर में है। हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी उस प्लांट को हम रीस्टार्ट कर लें। बाकी फैक्ट्री प्रोडक्शन के अंदर है और रेवेन्यू लॉस इसमें कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि जो खरीफ सीजन था वो एंड हो चुका था और हमने अपना प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जो अभी रिक्वायर्ड था उसको कर लिया था, तो एज सच कोई लॉसेज नहीं है। तो एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी स्टेक होल्डर्स को हमारा सपोर्ट करने के लिए, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं संदीप जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बढ़ाएं। Yeah, thank you, Managing Director, sir. I now, behalf of all the shareholders, would like to thank our Chairman, Managing Director, and all esteemed directors and members of the company, and invitees who are hosting this meeting. Thank you very much. The Chairman may conclude the meeting. Therefore, I now hand over the proceeding to Chairman, Mr. Jayaraman, sir. Thank you, Sandeep ji. I would like to thank the fellow board members, auditors, employees, and shareholders for joining us today and sparing their valuable time for the proceedings of this AGM. Now I declare the meeting as closed. Thank you.